নিচাই আছে মিড ডে 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান। বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ ৩টাকৈ স্থানত আজি পুৱাৰে পৰা শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে চলাইছে এক বৃহৎ অভিযান। বেটনি আৰু লংকেটাপু চৰত এই অভিযান চলাইছে দুইখন জিলাৰ প্ৰশাসনে। পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা উচ্ছেদ অভিযানত অবৈধভাৱে সজা বিদ্যালয়, অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, মছজিদ ঘৰকে ধৰি খেতি বাতি ধ্বংস কৰা হৈছে। 40 বছৰে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত অবৈধভাৱে দখল কৰি আছিল এই লোকসকলে। 3 দিনৰ ভিতৰত উচ্ছেদ অভিযান শেষ কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ। প্ৰায় 6000 বিঘা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে আজি পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে বুঢ়া চাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত প্ৰশাসনৰ বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। 16খন জিলাৰ পৰা অনা হৈছে প্ৰায় 3500 আৰক্ষী, নিৰাপত্তা আৰক্ষী। আমি দেখুৱাইছো উচ্ছেদ অভিযানৰ দৃশ্য। এনেদৰে ঘৰসমূহ ভাঙি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰা হৈছে। কেইবাখনো বুলডোজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে উচ্ছেদ অভিযানত। এই উচ্ছেদ অভিযানত কেৱল ঘৰেই নহয়, বিদ্যালয়, মছজিদ সকলো উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে। 40 বছৰ ধৰি অভয়াৰণ্যখনৰ প্ৰায় 6000 বিঘা ভূমি বেদখল কৰি বসতি স্থাপন কৰি আহিছিল একাংশ লোকে, আৰু এই লোকসকলক বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে জাননী জাৰি কৰা হৈছিল। জাননী জাৰি কৰাৰ পিছতো যিসকলে এই স্থান এৰি যোৱা নাছিল সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আজি পুৱাৰে পৰা এই বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। কেইবাখনো ট্ৰেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে উচ্ছেদ অভিযানত, কাৰণ খেতি বাতি কৰি আগ্ৰাসন চলাই গৈছিল এইসকল অবৈধ দখলদাৰীয়ে। 3 দিনৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে প্ৰশাসনে, আৰু যাৰ বাবে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন, শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক সমৰসজ্জাৰে পুৱাৰে পৰা চলাই গৈছে উচ্ছেদ অভিযান। চলাই আছে এতিয়া, আৰু কি কম, এতিয়া দুখীয়া মানুহ আছে, বহুত মানুহ এতিয়া ভাত খাব নোৱাৰে আৰু ঘৰ নাই, এনেকুৱা চলি আছে অৱস্থা। লিখা পঢ়া কৰিব নোৱাৰে, বহুত ঘৰ ভাঙি আছে আমাৰ। এতিয়া আমালোক ক'ত যাম? যাবাৰ ৰাস্তা নাই, এতিয়া একদম ৰাস্তা নাই, আমাৰ ক'ত যাম? এতিয়া ঘৰবিলাক ভাঙি চাঙি চেছ কৰি দিলে, আৰু মই আলিৰ ওপৰত বহি আছোঁ, কোনো মানুহ থিয় হৈ আছে এনেকুৱা। আৰু খেতি বাতি বহুত নষ্ট কৰিলে। এটা খেতিয়ে 50,000 40,000 টকা, 1 বিঘামান মাটি এতিয়া চব চেছ কৰি দিলে। এই এৰিয়াটোত আপোনাৰ 92 হেক্টৰ আছে বেটনি, এইখিনি যোনখিনি মোৰ দায়িত্বত নষ্ট আছে। এতিয়ালৈকে আমি হাতটো দিয়া নাই ন, দেখাইছে আপোনাৰ নাই কৰা। কি ক'লে? তেওঁলোকে কথা চলি আছে, নিয়মতেতো গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয়, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে লৈ গৈছে, দেখিছোঁ মই। মানে অনুমানিক প্ৰায় 50-60 ঘৰ হ'ব ভাঙিছে। খেতি মাটিও প্ৰায় 50 বিঘা নাই, 100-150 বিঘা ওপৰত হৈ যাব এনেকুৱা মাটি থাকিছে একদম পূৰা। এতিয়া তাৰমানে যিটো মানে কৃষি হয়, কেঁচা সামগ্ৰী আছে, সেইবিলাক চব খেতি এইবিলাক নষ্ট কৰি দিলে। এতিয়া মানুহৰ একদম ধ্বংসৰ পথ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। উত্তৰ পূবৰ 3 ৰাজ্য নিৰ্বাচনক লৈ অমিত শ্বাহ, ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ অমিত শ্বাহৰ মন্তব্য। ত্ৰিপুৰা পুনৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বিজেপিয়ে। লগতে নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয় দখল কৰিব বুলি আশাবাদী। উন্নয়নৰ বাবে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰক বিচাৰিব উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে। দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰে তুলনা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ। পূৰ্বে উত্তৰ পূবক অৱহেলা কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে, আৰু এতিয়া মোদীৰ নেতৃত্বত মনৰ দূৰত্ব ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে দিল্লী আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ। के हिसाब से कि बीजेपी कहां पर है त्रिपुरा में, क्या भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं या फिर नेक टू नेक चल रहा है यहाँ पर? देखिए, हम त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी। वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है, और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। तो ये अगर गठबंधन तय है, तो जब गठबंधन इस तरह बन रहा है कि कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज
मतलब एवरीबडी गेट टुगेदर टू डिफीट बीजेपी, ये एक सोची समझी अगर रणनीति है तो क्या ये आप समझते हैं इसके लिए एक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द बीजेपी? देखिए, आप पत्रकार हैं इसलिए इस तरह से सोच रही है स्मिता जी। मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इसको अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मेरी पार्टी को इससे आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई अकेला लड़ना नहीं चाहता। अगर ताकतवर हुए हैं तो हमने एक आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए, और हमने 5 साल में जो करा है वो बताना चाहिए। जो हमने बताया अब तक के चुनाव परिणाम के अंदर, मैंने 4 रैलियां करी हैं, 3 रोड शो करे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज का रोड शो का जो दृश्य मैंने देखा है, मैं कई बार त्रिपुरा आया, पार्टी अध्यक्ष के नाते भी आया हूं, कैंपेन में भी आया हूं, गृह मंत्री के नाते भी आया हूं, और चुनाव के बगैर भी आया हूं, मगर ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। ইফালে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়নক লৈ মন্তব্য কৰে অমিত শ্বাহে। উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থী সমস্যাৰ ক্ৰমাৎ সমাধান হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে উন্নয়ন কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ। মোদী চৰকাৰে উন্নয়ন সাধন কৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ। পূৰ্বে উত্তৰ পূবত গুলী বোমা হিংসাত্মক ঘটনা হৈছিল, আৰু এতিয়া সেই ঠাইত ৰেল চলিছে, বিমান চলিছে। পথ ৰেল পথ যোগাযোগৰ উন্নয়ন হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে কেতবোৰ দিশত উন্নয়ন সাধন কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতত G20 বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে বৃহৎ সফলতা। মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতত দ্ৰুত গতিত উন্নয়ন হৈছে। বহু উন্নয়নশীল দেশে এতিয়া সন্মানেৰে চাইছে ভাৰতক। মোদীৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে। उत्तर पूर्वी राज्यों में 2 और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। आपके हिसाब से उन दोनों राज्यों में भी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको व्हाट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? देखिए, समग्र उत्तर पूर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, आरबी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहां पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 20-25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। यहां पर भी NLFT के साथ समझौता किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। तो जो उत्तर पूर्व को पहले ब्लॉकेड, बम धमाके, इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था, आज इसकी जगह वहां रोड बन रहे हैं। सभी राज्यों में रेल पहुंचने को आई है, सभी राज्यों में एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। जहां एक एयरपोर्ट था, वहां त्रिपुरा जैसे राज्य में दूसरा भी हम बना रहे हैं। तो ढेर सारा विकास का काम नॉर्थ ईस्ट को इससे विकास से युक्त बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है, और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। इसके साथ साथ कोरोना के समय से जो परंपरा शुरू हुई है फ्री चावल देने की, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को आबादी के प्रतिशत में हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है। और आज नॉर्थ ईस्ट के गरीब को यह मालूम पड़ गया है कि मेरे घर को कंप्लीट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। আদানীৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে, সেয়ে এই বিষয়ত কোনো কথা কোৱাটো উচিত নহয়। এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। কিন্তু এই বিষয়ত বিজেপিয়ে লুকুৱাবলগীয়া অথবা ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। जहां पर आप ऑपोजिशन की पार्टीज पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वहीं कांग्रेस जो है अब आपकी पार्टी पर, आप पर नहीं, आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा रही है कि बीजेपी के जो मित्र हैं, अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, और बीजेपी जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है।
देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा। परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। जी, निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें कांग्रेस से करप्शन के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो हमको जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीয়ে उत्तर पूर्वर लोकर देशर आन प्रांतर लोकर सहित मनत दूरत्व कमाबले सक्षम হৈছে। এতিয়া স্থানীয় ভাষাত শিক্ষাদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। বড়োলেণ্ডত বড়ো ভাষাত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা হৈছে। ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰতো একেই ব্যৱস্থা হৈছে। পূব নাগালেণ্ডত নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ আহ্বান দিয়া লোকে মোদীৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ আহ্বান প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ। बहुत बड़ी चीज होती है उत्तर पूर्वी राज्यों में, मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो अगर मिट ना जाए, उसको प्रिजर्व करके रखना, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, ये बहुत एक सेंसिटिव मसला है। तो मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर ये इशू उठ रहा है। नहीं, मगर उनको अब तो 9 साल में परिचय हो गया है। मीडिया जो हमारे लिए अफवाहें फैलाता था कि हम आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपकी भाषाएं चली जाएगी, उल्टा मोदी जी के आने के बाद लोकल लैंग्वेजेस और स्ट्रेंथी हो गई और मजबूत हो गई। अब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होने लगी है। और इतना ही नहीं, कई सारी बोलियां जैसे मणिपुरी है, जैसे यहाँ की बोली है, त्रिपुरा की, कई सारी बोलियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। बोडोलैंड में भी उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने लगी है। तो उनकी आइडेंटिटी को और मुखर कर मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक भी राष्ट्रीय पर्व ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं किया है। उनके लिए देश भर के अंदर स्वीकृति बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूं कि भाई नरेंद्र भाई ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने रेलवे से उत्तर पूर्व को जोड़ दिया। ये तो किया ही है प्रधानमंत्री जी ने, मगर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तर पूर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि भारत के बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है, यहां भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए। नागालैंड में भी ईस्टर्न नागालैंड में कुछ लोगों ने उकसाकर इलेक्शन का बहिष्कार करने का ऐलान करवाया था। अभी एएनपीओ ने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा हमें मोदी जी पर भरोसा है। तो यही बताता है कि अब ये चीजें नहीं चलने वाली। तो वो जो अकॉर्ड है उसका अभी तक वो सुलझ नहीं पाया अभी तक। देखिए, सुलझ नहीं पाया है। अकॉर्ड किस चीज के लिए होते हैं? अकॉर्ड हिंसा बंद करने के लिए होते। हिंसा तो बंद ही हो गई है, सीज फायर है ही, और इस पर डिस्कशन चल रहा है। 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল একপক্ষীয় হৈ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পক্ষতে ভোটদান কৰিব দেশে। এই মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ। দেশৰ জনতাই 2019 চনতো কোনো দলকে প্ৰধান বিৰোধী দলৰ দায়িত্ব নিদিলে। এইবাৰ কাক প্ৰধান বিৰোধী দলৰ দায়িত্ব দিয়ে সেয়া দেশৰ জনতাইহে निर्धारण करिब। मैं तो अभी त्रिपुरा में घूम रहा हूं। आज भी एक मैं बहुत गरीब घर के अंदर भोजन करने के लिए गया था। उसने उसका टॉयलेट भी बताया, गैस का सिलेंडर भी बताया, घर में बिजली भी बताई और नल से आता हुआ पानी भी बताया और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया। ये लाभार्थी स्कीम तो ये गरीब के घर में पहुंचा है सारा जी। तो ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की राजनीति, ये आप पिछले 8 साल और अब 2 साल
लेकिन क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन किसे मानते हैं? कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी? ये तो देश की जनता ने तय करना है। अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहुल गांधी ही खड़े होंगे, क्योंकि ममता जी वगैरह तो देखिए ना, ये 3 राज्यों में चुनाव है, कितना असर होता है। राहुल गांधी तो आए नहीं कैंपेन करने के लिए, त्रिपुरा तो आए नहीं। वो आना ना आना उनकी फुर्सत का सवाल है, परंतु परिणाम तो आना चाहिए ना। देखिए ना क्या आता है अभी काउंटिंग के दिन। लेकिन 3 कांग्रेस राज्यों में है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तीनों पुराने कांग्रेस के राज्य हैं जी। कितनी मजबूती मिलती है देखते हैं परिणाम में। আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। মিড ডে 18ত সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। ফাগুন মানেই মদাৰ, ফাগুন মানেই পলাশ ফুলে, মানুহৰ মনত এটা মানে ৰঙীন ঢৌৰ সৃষ্টি কৰে আৰু ৰঙীন উতলা কৰে মনবিলাক। আচলতে সকলোৰে মনত এটা ফাগুন বুলি ক'লে এটা মানে হেঁপাহৰ মানে এটা নতুন জাগৰণ আহে বুলি মই ভাবোঁ। মৃত্যু উপত্যকাত পৰিণত হোৱা তুৰস্ক আৰু সিৰিয়াত অব্যাহত আছে জীৱনৰ সন্ধান। দুয়োখন দেশৰ ধ্বংসস্তূপৰ পৰা বৰ্তমানলৈ প্ৰায় ৩৭,০০০ৰো অধিক লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কেৱল তুৰস্কতে মৃত্যুৰ সংখ্যা ৩১,০০০ৰো অধিক। আনহাতে সিৰিয়াত মৃত্যুৰ সংখ্যাই অতিক্ৰম কৰিলে ৫,৭০০ৰো অধিক। বিধ্বংসী ভূমিকম্পত ১২,০০০ৰো অধিক অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। দুয়োখন দেশত এতিয়াও ৮০,০০০ৰো অধিক লোক সন্ধানহীন হৈ আছে। ১০ লাখৰো অধিক লোকে বৰ্তমান আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে আশ্ৰয় শিবিৰত। আনহাতে সিৰিয়াতো প্ৰায় ৫৩ লাখ লোক গৃহহীন হৈছে। ধ্বংসস্তূপৰ মাজত দিনে নিশাই চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান। তুৰস্ক আৰু সিৰিয়ালৈ প্ৰায় ৭০খন দেশে আগবঢ়াইছে সহায়ৰ হাত। তুৰস্কত ধ্বংসস্তূপৰ পৰা জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা কুকুৰ। উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসস্তূপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে এই কুকুৰটোক। ৭-৮ দিনে ধ্বংসস্তূপৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে এই কুকুৰটো আৰু কুকুৰটোক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছতে উদ্ধাৰকাৰী দলে খাদ্যৰো যোগান ধৰিছে, পানী খুৱাই দিছে। শেহতীয়াকৈ এগৰাকী মহিলাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কেইবাটাও কণমানিক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা। মিড ডে 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।